guys, welcome back to my YouTube channel. So in today's video, let me talk about something like which is very close to my heart. Like how can you actually identify like fake friendships? So मैं ये experience कर चुकी हूँ. ऐसे काफी साल मैंने गुजार दिए ये सोच के कि that person is my friend and ultimately वो friend था ही नहीं. Many parameters in my life that I thought कि ये मेरा दोस्त है, but then they actually were never there. So yeah, there are certain things that I learned in my life which actually I want to share it with you guys ताकि आप ये damage से बच जाओ. So point number one, they show up only when they need something. A real friend is present even when there is nothing to do. है ना, कुछ करने के लिए नहीं है, बस ऐਵੇਂ बैठो बातें करो. कोई एक ऐसा दोस्त अगर आपकी लाइफ में ना, उसे चेरिश कर लेना. Okay, because this is one basic thing based on which you can actually identify a fake friend and a real friend. जो fake friend होता है ना, जरूरत के टाइम पे ही अवेलेबल होता है. जब आपको जरूरत पड़ती है वो गायब है, बट जब उन्हें जरूरत पड़ती है they are like मैजिक के जैसे, मतलब आ जाते हैं. Like they just want some emotional support, they just call you. They just want some favor from you, they'll just call you. Okay, they just want like गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, या कोई बुक चाहिए, नोट्स चाहिए. They are not coming to the college and they just want you to handle the situation in the college and like so many things. They उसी टाइम पे बस आपकी याद आती है. And the moment like you need something, suddenly they are like so busy, so tired, they are like not in a mood, तबीयत खराब हो जाती है and blah blah blah. They just disappear. And the worst part is they make you feel guilty for even asking. आपको ही गिल्ट ट्रैप में डाल देते हैं. अगर आप ऐसी कोई फ्रेंडशिप में अटके हुए हो ना कि जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं है, जहाँ पे बस आप ही एक गिवर बनते जा रहे हो, इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो बच के रहना ऐसे दोस्ती से. दैट्स नॉट ट्रू फ्रेंडशिप. बिकॉज इफ योर प्रेजेंट मैटर्स ओनली व्हेन इट इज बेनिफिटिंग देम, दैट्स नॉट फ्रेंडशिप ना, दैट्स यूसेज. आई वुड कॉल द वर्ड यूसेज. ओके, now point number 2, they celebrate your problems but they stay silent in your achievements. भाई साहब, I have experienced this also because जब भी मैं कोई प्रॉब्लम में होती थी या मैं कोई प्रॉब्लम बोलती थी ना, पहले तो दे बी लाइक ओके ठीक है, मतलब प्रॉब्लम को वो एग्जैगरेट करते थे, ठीक है, और वो बार बार वही चीज़ को बोल बोल के डिस्कस करते थे और 4 लोगों में. बट जब मुझे ना कोई अवार्ड, मतलब कोई प्राइज मिलता था, आई वुड नॉट से अवार्ड, बट जब कोई प्राइज मिलता था, कॉलेज लेवल की बात है, तो कोई अवार्ड मिल रहा है, कोई प्राइज मिल रहा है या कोई मेडल मिल रहा है ना, दे आर नॉट इवन देयर टू चीयर मी अप. I mean, they're just there, ठीक है, इसको मिल रहा है, वो जाके अपना काम कर लेगी. So that mindset. So a fake friend will be the first one to sit with you when the life hits you like hard. Because they are enjoying it, not because they care, but just because like they are enjoying your downfall. उनको ऐसा लगता है ना, अरे आपका लो फेस चल रहा है, तो they are not the only one who are experiencing that low phase in their life. उनके साथ तो आप भी हो, तो मतलब आपको देख के उनको एक रिलीफ मिलता है कि अरे इसके लाइफ में तो बुरा चल रहा है, तो मेरी लाइफ में भी तो बुरा चल रहा है, तो they just relax themselves, अपने आप को satisfaction देते हैं. But the moment you start growing, the moment you start healing, the moment you start achieving like good things in your life, they turn cold. Like उनका रिस्पॉन्स जो होता है ना, जब आप उनसे शेयर करते हो, like अच्छा ओके ठीक है, they avoid that topic, they don't want to talk about it, or they change the conversation immediately because your success like is the biggest insecurity in their life. और जब भी आप अपने बारे में फ्लेक्स करते हो ना 4 लोगों के सामने, they be like हाँ ठीक है, होता है, कॉमन है भाई, आई हैव एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग्स. सो मैं बोलती हूँ फेक फ्रेंड इज एक्चुअली competing with you. A friend who is real to you will never compete. He will that friend will actually push you to grow in life, to achieve like targets in your life. तू give up मत कर. मतलब ऐसी दोस्ती भी अब मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ. So I can tell कि like the basic thing जो मैं चाहती थी वो अब जाके मुझे मिल रहा है. And this is happening only because I started setting like healthy boundaries with the ones जिसको मैं सोच रही थी कि वो मेरे दोस्त हैं, जो कि एक्चुअल में नहीं थे. उनके साथ मैंने बाउंड्री सेट करना शुरू किया, तो तब जाके मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो एक्चुअल में मेरी बाउंड्री रिस्पेक्ट भी करते हैं, एंड दे आर ऑलवेज देयर टू चीयर मी अप कि कुछ बुरा हो गया क्या, कोई बात नहीं, हम हैं, हम संभालेंगे. दे इंक्लूड मी इन देयर स्पेस. सो यार ध्यान रखना ये चीज़ का ना. पॉइंट नंबर 3, ये तो मतलब हम अर्ली स्टेजेस में इग्नोर करते हैं, बट जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं ना, लाइक आई एम नाउ इन माई लेट 20s, तो आई अंडरस्टैंड दिस वेरी नाइसली कि अगर आप कोई फ्रेंड से मिल के आते हो ना, दे लाइक you feel more powerful, you feel more energetic even after spending a lot of time with them outside. और जो फेक फ्रेंडशिप होती है ना, लाइक दे ड्रेन योर एनर्जी, दे नेवर रीफिल इट. किसी से मिलके आने के बाद में अगर आपको थकान सा फील हो रहा है, यू आर नॉट फीलिंग एनर्जेटिक, यू आर फीलिंग लाइक यू आर ड्रेन्ड आउट, तो समझ जाना कि आप ना किसी की निगेटिव एनर्जी अब्सॉर्ब करके घर आ रहे हो. अ फेक फ्रेंड विल ऑलवेज लीव यू इमोशनली एग्जॉस्टेड. After talking to them, you don't feel like you're understood. You feel drained because the whole conversation revolves around their life, their problems, their drama, what they are going through. Okay, it's never about you. आप कुछ बोल रहे हो, अपने से कनेक्ट कर लेंगे और अपनी एक स्टोरी बना लेंगे. आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही बनना चाहते हैं बस. And even when you talk, they don't listen. They are just either cutting you और उनका बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट जैसा कुछ सिनेरियो होता है. फेक फ्रेंड्स ऑलवेज गिव यू अ लॉट ऑफ प्रेशर. तो अभी कैसा होता है ना, मैं जब अपने दोस्तों से मिलके आती हूँ, I just go out, I meet them, and I come back so powerful. मतलब घर आने के बाद में still I feel like superb, like energetic.
सो या मैंने रियलाइज किया है, कुछ लेट हुआ फ्रेंडशिप्स को रियलाइज करने में मेरे को, बट आई हैव रियलाइज लाइक यू नो हु इज अ ट्रू फ्रेंड, हु इज एक्चुअली नॉट अ ट्रू फ्रेंड. सो दीज आर लाइक सर्टेन बेसिक थिंग्स दैट लाइक आई हैव एक्सपीरियंस एंड आई होप दिस विल हेल्प यू गाइज एज वेल. एंड जहां पर भी आप फिट नहीं हो रहे हो वहां से निकल जाओ. डोंट ट्राई टू लाइक फोर्स योर सेल्फ टू फिट इन अ सर्कल जस्ट टू मेक फ्रेंड्स. फ्रेंड्स की जरूरत ही नहीं है. आप जब फ्रेंड्स नहीं बनाओगे ना, ऑटोमेटिकली पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग यू, पीपल विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू. फाइंड सच पीपल जो आपकी मेंटालिटी से वाइब करे, जो आपके साथ एकदम बिल्कुल टक्कर की वाइब करे. सो फ्रेंडशिप शुड नेवर फील लाइक वन साइडेड यार. जैसे हर रिलेशनशिप में हम बोलते हैं ना वन साइडेड नहीं होना है, फ्रेंडशिप में भी वन साइडेड नहीं होना चाहिए. सो या बाय.